Hello everyone, I am Armandeep Singh and today we are going to discuss few of the previous year question from the HAS means. So I'm going to tell you that how we can write the answers to this question from the GS paper 2. So these are the question for the GS paper 2. So the first question which we are going to discuss today is, it was a 60-word question and it was that describe the basic tenets of preamble of the Indian Constitution. So very simple question, you just need to remember what is written in the preamble. तो preamble के main words जो हैं वो लिखेंगे हम. So the word here is just to describe them. You don't need to explain it. और 60 word में आप explain भी ज्यादा कर नहीं सकते. तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको preamble अच्छे से पता है या नहीं पता है. So here what we can do is we can write first that what is preamble. Okay. So what is preamble? So इसको बस hardly 10 to 15 words में लिख दीजिए that what is preamble. That preamble is basically an introductory statement, introductory page to the Constitution of India, which tells us about the basic philosophy of the Constitution. तो basic philosophy of Constitution जो है वो इसकी बात करता है. तो Constitution के जो भी objectives हैं या जो भी Constitution के ultimate goals हैं उनको अचीव कैसे करना है या उसके क्या क्या goals हैं उसके बारे में इसने पता चलता है. This should be in hardly 10 to 15 words max. Okay. And इसके बाद आप बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की सारे के सारी प्रोविजंस के बारे में बताना शुरू कर दोगे. दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या क्या कह रहा है. दैट फर्स्ट थिंग लाइक दिस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वांट्स टू वहां कहां से पावर डिराइव कर रहा है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल. तो कॉन्स्टिट्यूशन यहां से पावर डिराइव कर रहा है. ठीक है. देन अबाउट द बेसिक व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इट वांट, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इट्स वांट टू अचीव. दैट वांट लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरन आल्सो. सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सो 6 वर्ड्स बेसिकली आपको बता देंगे, अगले को बता देगा दैट यू नो that what is the what type of the country constitution want. Then after this you can tell that what kind of society it want. ठीक है. तीसरे पार्ट में बताएंगे that what kind of a society it want. So third basic tenet is about the society. The society is justice. First thing is justice. ठीक है. किस तरीके की justice? Social, economic and political. Justice in social, economic and political. ठीक है. Then about liberty. Society में सबको liberty provide करना चाहता है. Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. 5 चीजें, thought, expression, belief, faith and worship. तो ये 5 चीजें जो है liberty में आ जाएंगी. Then आपका equality, equality of स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. तो 2 चीजें इसमें आ गई, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी. एंड लास्ट इज अबाउट योर फ्रेटर्निटी. सो फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity plus integrity of country. ठीक है. तो अगर आप बेसिकली ये चीजें लिख दोगे तो आपकी 60 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे एंड आपने पूरा का पूरा प्रीएम्बल जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है. ठीक है. एंड देन जस्ट यू नीड टू स्टॉप हियर. यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग बिकॉज इससे ज्यादा लिखोगे तो आप शायद वर्ड लिमिट से आगे चले जाओगे. और 60 वर्ड्स के आंसर में मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखनी भी होगी तो ट्राई मैक्सिमम टू राइट इन 10 to 15 वर्ड्स. इंट्रोडक्शन इन 10 to 15 वर्ड्स. Okay. And then you can write the body part.
और कंक्लूजन अगर लिख पाए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पाओगे तब भी कोई बात नहीं है, इट्स टोटली फाइन विद द 60 वर्ड्स आंसर। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कि कंक्लूजन, तो देन यू कैन राइट दैट इट टेल्स अबाउट द डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 नवंबर 1949. The day of adoption of the Indian Constitution is also mentioned here. Okay, so this is the first question, which is 60 word. Okay, now we go to the next question. Next question is the 120 word question. Okay, the question was, explain the role of civil society in governance. Okay, governance में सिविल सोसाइटी का रोल, ठीक है। यहां पे आपको इंट्रोडक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी 120 वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन इन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स। सो हियर ही आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। तो आप सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो पहले कि सिविल सोसाइटी जो है दैट इट इज बेसिकली दैट एरिया which does not come under the influence of the state, जो कि स्टेट से बाहर है, एंड इंडिविजुअल और स्टेट के बीच वाली जो स्पेस है, वैक्यूम जो है, उसे ऑक्यूपाई करता है सिविल सोसाइटी। सो इट एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सोसाइटी, योर गवर्नमेंट दैट इज स्टेट एंड योर इंडिविजुअल। सो दिस इज द वन डेफिनेशन। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस भी वर्ड मेंशन है, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट सिविल सोसाइटी प्लेज an important role in the good governance and there are more than 3.5 million NGOs in India which are trying to achieve this objective. So this is another definition also. You can write the fact here that almost 3.5 million NGOs are present in India. ठीक है, ये दूसरी तरीके की इंट्रोडक्शन हो गई। ओके, देन लेट्स कम टू द मेन बॉडी पार्ट। तो जब बॉडी पार्ट की बात करेंगे, एज इट इज अ 120 वर्ड्स क्वेश्चन, तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 8 पॉइंट्स, मिनिमम ऑफ 8 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 10 पॉइंट्स फ्रॉम यू दैट यू शुड राइट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ 10। तो 8 पॉइंट्स लिखोगे तभी एग्जामिनर को आप प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर पाओगे चीजें, एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्योंकि 120 वर्ड में लिख रहे हो तो इतने पॉइंट्स तो जनरेट करने पड़ेंगे आपको, जैसे मर्जी करके जनरेट करो। सो जब हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, वी कैन राइट दैट क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकती हैं इसकी। सबसे पहला तो इसका ये सिग्निफिकेंस लिख सकते हो दैट इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट विल लीड्स टू द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। सेकेंड यू कैन इज दैट दे ऑल्सो हेल्प टू कर्ब द करप्शन एंड प्रमोट, करप्शन कर्ब करता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। करप्शन को सबसाइड करेगा और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। इसमें बहुत बढ़िया आप एग्जांपल भी डाल सकते हो अबाउट द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो कि पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के 2004 वाले केस के बाद पास किया गया। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द लोकपाल दिस थिंग दैट इट कैन ऑल्सो प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी विद इन द गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। और उसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो लोकपाल एंड लोकयुक्ता के लिए जो जन आंदोलन हुआ, लोकपाल बिल की एग्जांपल दे सकते हो आप इसमें। ओके, देन दे एक्ट एज अ वॉचडॉग फॉर द
वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, वॉचडॉग की तरह काम करता है फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो वल्नरेबल सेक्शन को एक तरीके से प्रमोशन प्रोवाइड करता है। इसमें भी आप अच्छी तरीके से कुछ जजमेंट्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसमें जौहर सिंह केस का पार्ट डाल सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसजेंडर। ओके, इसमें आप उसका एग्जांपल डाल दिए। देन दिस इज वॉचडॉग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड स्पोक पर्सन फॉर द वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शन। इट्स एक्ट लाइक अ स्पोक पर्सन फॉर देम। ठीक है, उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो आप इसमें डाल सकते हो, दैट इट असिस्ट गवर्नमेंट इन सर्विस डिलीवरी। किस तरीके से? आप जानते हो कि इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल है, तो वहां पे कभी कभी गवर्नमेंट भी रीच नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द रफ जियोग्राफिकल एरियाज, या कुछ आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया की बात कर ले, तो वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट को लोगों तक रीच करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में सिविल सोसाइटी जो है दैट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, और सर्विस डिलीवरी के साथ लोगों का ट्रस्ट जीतने में हेल्प करती है। तो आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट जब बनेगा थ्रू द सिविल सोसाइटी, इट विल आल्सो प्रमोट द पीस विद इन द कंट्री। पीस और प्रॉस्परस सोसाइटी होगी। ठीक है, देन आपके एनजीओस बहुत सारे नॉन प्रॉफिट जो है सर्विसेज करते हैं, लाइक इन हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स द जॉब्स, क्रेडिट, जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये इंक्लूसिव सोसाइटी जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं इंडिया को। दे आर प्रमोटिंग द इंक्लूसिव सोसाइटी, अलग अलग जॉब्स प्रोवाइड करके, क्रेडिट प्रोवाइड करके। इसके अंदर आप एग्जांपल डाल सकते हो अच्छी बड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एग्जांपल डाल सकते हो आप। एजुकेशन के केस में आप देखोगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लाइक देयर आर रिपोर्टिंग करता है प्रथम, which has recently received the NGO which is indulged in the education, और इनको रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो प्रथम इज अ गुड एग्जांपल हियर। लास्ट थिंग which you can also add here is that it makes sure that the governance is converted to the good governance. There is not only governance but good governance. Good governance by through participative decision making. Participative decision making. तो सिर्फ आप आजकल बात करते हैं ना गुड गवर्नेंस की, तो दिस इज व्हाट द गुड गवर्नेंस इज अबाउट। एंड सिविल सोसाइटी मेक श्योर दैट व्यूज, ठीक है, एंड यू नो दैट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड। Nobody is left behind in the policy formulation. जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो कोई भी ग्रुप जो है पीछे नहीं छूटना चाहिए, हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द गुड गवर्नेंस इज अबाउट। ओके, सो आप इसमें ये मेजर पॉइंट्स है। सो इफ यू सी यू हैव मोर देन 8 to 10 पॉइंट्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस। देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव होना चाहिए आपका। कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिखना है। एंड क्योंकि 120 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो वन लाइनर कंक्लूजन 10 से 15 वर्ड का मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। 10 to 15 वर्ड्स कंक्लूजन मैक्सिमम इन वन लाइन और 1 and 2 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हो that civil society helps in the achievement of active collaboration of the civil society and promote that civil society helps in the active collaboration of the various group and helps in achievement
of the effective governance or less government and more governance as envisioned by our Prime Minister. आपके पीएम आजकल यही बात कर रहे हैं ना, our PM Mr. Narendra Modi, he is talking about that there should be less government and more governance or there should be effective governance. तो आप अपने पीएम को कोट कर सकते हो इन द कंक्लूजन, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप की तरह आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ अलग सा अपनी तरफ से भी कंक्लूजन पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो सिविल सोसाइटी के रोल के ऊपर, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन वाज critically examine about the basic structure theory of the Indian Constitution. This is in 120 words also. This question was asked in 120 words also. So quite simple question, not very difficult. Okay, here also introduction, similarly as with the previous case, 15 to 20 words max, जिसमें आप बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की आप बता सकते हो कि व्हाट इज बेसिकली द डेफिनेशन दैट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज अबाउट सम द बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी ब्रीच्ड बाय द पार्लियामेंट और बाय एनी अदर बॉडी, बाय एनी लॉ और बाय एनी अदर मीन्स। तो किसी भी तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के कुछ बेसिक टीनेट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको नहीं ब्रीच कर सकते आप। ठीक है, तो इन बेसिक टीनेट्स को बचाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हम यूटिलाइज करते हैं। तो आप इसमें देखोगे तो 120 वर्ड्स में तो आप इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता सकते हो दैट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। और इसमें एक आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो कोट द केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को आप कोट कीजिए कि दैट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का ओरिजिन हुआ है केशव नंदा भारती केस में इन 1973। द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केम एंड दिस थ्योरी वाज अगेन इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया था इन मिनर्वा मिल्क केस में। तो दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डाल दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप जब भी पॉलिटी के या फिर गवर्नेंस के क्वेश्चन करते हो तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का डालना इज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू जस्टिफाई योर आंसर। वो बताता है कि यू एक्चुअली हैव द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू एक्चुअली नो दैट व्हाट इज दैट सुप्रीम बॉडी ट्राइंग टू टेल। द सुप्रीम बॉडी हियर इज सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या कहना चाहता है, किस तरीके से कहना चाहता है, तो केशव नंदा भारती केस को आप इसमें कोट कीजिए और साथ में मिनर्वा मिल्क केस को। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू इन द आप चाहे इसमें इंट्रोडक्शन में भी इसको डाल सकते हैं दैट दिस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जो ओरिजिनेशन है इट कैन बी ट्रेस बैक टू द केशव नंदा भारती केस एंड बाद में इसको एक्सपेंड और ज्यादा किया गया मिनर्वा मिल्क केस में। और उसके बाद तो और बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर को बीच में डाला है विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है ना, और साथ में आप बता सकते हो दैट व्हाट आर दिस फीचर्स या व्हाट आर दिस कैरेक्टर्स विच आर अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, लाइक सेकुलर स्टेट होना, सोशलिस्ट स्टेट होना, वेलफेयर स्टेट। ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट हो गया। ओके, these are all part of the basic structure theory, your supremacy of the constitution, federal character of the constitution, parliamentary system, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। तो इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप देखोगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स वैसे भी प्रीएम्बल में मेंशन्ड है या फिर उससे डिराइव किए जा सकते हैं। ये वहां पे मेंशन्ड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यू नो अवर सिस्टम, फेडरल सिस्टम, वी हैव फेडरल कैरेक्टर। सो ये तो आप बेसिक चीजें हैं which are part of the basic structure theory। तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बीच में डाल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को समझाने के लिए।
नाउ द क्वेश्चन वाज दैट क्रिटिकली एग्जामिन, तो यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है कि यू शुड नॉट ओनली राइट द नेगेटिव पॉइंट्स, यू ऑल्सो हैव टू राइट द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑल्सो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए आपको 8 से 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे विद इन द 120 मार्क वर्ड्स आंसर, और इसमें से क्या करेंगे हम 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव में डालेंगे, 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव में डालेंगे और अपना बैलेंस्ड आंसर लिख देंगे लास्ट पे। ओके, दिस कैन बी डन इजीली, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो लेट्स नाउ लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें या फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है, पॉजिटिव और सिग्निफिकेंस, तो उसमें आप 4 से 5 पॉइंट्स अच्छे लिख सकते हो। सबसे पहला क्या लिख सकते हो, दैट इट प्रोवाइड्स चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो एक लिमिट से बाहर ना जाए। अगर ये एरिया लेजिस्लेचर का है तो इट शुड नॉट गो आउटसाइड दिस एरिया। अगर ये जुडिशरी का है तो दिस इज द मैक्सिमम एरिया, जुडिशरी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये एग्जीक्यूटिव का एरिया है तो ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहने चाहिए, तीनों के तीनों ऑर्गन्स। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को भी प्रमोट करता है। यू नो, इसके एग्जांपल आप बहुत अच्छी डाल सकते हो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसकी कुछ प्रोविजंस को आपका केशव नंदा भारती केस में ही देखोगे तो कईयों को नलीफाई कर दिया गया और कुछ को मान दिया गया बिकॉज दे वर गोइंग अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल। तो आप और भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनको बीच में डाल सकते हो कि जब वो एक फेडरल कैरेक्टर को ओवर उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं या अपनी पावर को अनलिमिटेड तरीके से यूज करना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है। ठीक है। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रेलेवेंट टू द न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। तो आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या हो रहा है कि न्यू टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज सीन एज अ लिविंग ऑर्गन, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए विद द चेंजिंग नीड्स। टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए ना चेंजिंग नीड्स के साथ। तो आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में हर बार कुछ ना कुछ नया डाल दिया जाता है या फिर कुछ ना कुछ उससे बाहर निकाल दिया जाता है जब उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है इन द प्रेजेंट टाइम। तो जब हमको लगता है दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक राइट नाउ इंडियन सोसाइटी नीड्स द मोस्ट, तो वी मेक इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का। आपका सुप्रीम कोर्ट इसी टाइम उसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में ले आता है और उससे क्या होगा दैट इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट टू द इमर्जिंग न्यू चैलेंजेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट हियर। कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ है, तो वो इसलिए किया गया है, अमेंडमेंट्स इसीलिए किए गए हैं क्योंकि सोसाइटी जो है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस चेंजेस के साथ साथ आपको अपना लॉ जो है या फिर बेसिक आपका लॉ बुक जो है उसको भी चेंज करते रहना पड़ेगा। ओके, सो इट मेक श्योर दैट द न्यू चैलेंजेस आर एक्चुअली टैकल्ड इन द मोस्ट फॉर्मिडेबल वे। ओके, इट सेफगार्ड द बेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट्स बोथ। हर एक तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इट मेक श्योर दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सम ऑफ द बेसिक राइट्स टू द सिटीजंस ऑल्सो। आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर आप बहुत सारी बेसिक राइट्स जो हैं वो लोगों को देते हो और उनको प्रोटेक्ट भी करते हो फ्रॉम द स्टेट, कि स्टेट इन राइट्स के ऊपर कभी भी ना आए, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर आप देखोगे दे कैन बी अमेंडेड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट उनको कितनी लिमिट तक अमेंड करना है वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बताएगा, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सिटीजन्स को भी, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। उसके लिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर अमेंडमेंट हो रही है तो बस एक लिमिट तक हो, तो सिटीजन्स के बेसिक इंटरेस्ट या बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्शन देता है ये। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। ओके, देन वी हैव टू लुक एट द नेगेटिव पॉइंट्स नाउ और द लिमिटेशंस हियर, दैट नेगेटिव्स और लिमिटेशंस। तो नेगेटिव्स और लिमिटेशंस में आप देखोगे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिफाइन ही नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन यू हैव नॉट टोल्ड कि कौन सी फीचर्स एसेंशियल हैं और कौन से नहीं, कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके अपनी मर्जी से आप चीजें ऐड कर लेते हो और अपनी आप मर्जी से चीजें सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो देयर इज नो यूनिफॉर्मेलिटी, तो यूनिफॉर्म नहीं है कहीं पे भी, आपको पता ही नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में आएगा क्या और क्या नहीं आएगा। केसेस आते हैं उसके बेसिस के ऊपर आप चीजें ऐड कर देते हो और केस टू केस बेसिस पे आप उनको साइडलाइन कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ऑल्सो वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को कर रहा है ना सेपरेट, क्योंकि जुडिशरी डिटरमाइन कर रही है कि क्या बेसिक प्रिंसिपल आएगा क्या नहीं। तो ये पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर जो है उसको करटेल कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बेसिकली ये है। इसमें क्या एग्जांपल डाल सकते हो, आपका एनजीएसी केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस, जिसमें पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है और जुडिशरी ने उसे शट डाउन कर दिया क्योंकि वो उनको लगा कि दैट इट इज एंटरिंग इनटू आवर स्फीयर। ओके, एंड चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल का छोड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे तो आप इट गिव्स अनलिमिटेड पावर टू द जुडिशरी, अनलिमिटेड पावर टू द जुडिशरी। और अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी जो है जुडिशियल ओवररीच होना शुरू हो गया है। इट्स नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म एनीमोर, इट्स जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राइट नाउ इन द कंट्री, बिकॉज बाय यूजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की डॉक्ट्राइन। तो अनलिमिटेड पावर टू द जुडिशियल ऑर्गन्स एंड इट हैज प्रमोटेड द जुडिशियल ओवररीच। इसके एग्जांपल है जुडिशियल ओवररीच अच्छा वाला। ओके, सो दिस आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव। हाउएवर मैंने आपको अभी बोला कि कंक्लूजन जब भी लिखना है तो पॉजिटिव लिखना है। तो जब आप इसका कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन में लिखोगे ही ना आप कुछ पॉजिटिव लिखोगे, और पॉजिटिव ये लिखोगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी चीज लेके आया है लाइक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, तो इट इज बिकॉज टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटेरियन व्यूज या मेजॉरिटेरियन रूल थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, एंड दैट्स व्हाई द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज रेलिवेंट। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इसीलिए, ऑल्दो दिस थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस हमको दिख रही हैं, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुमको सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करना है तो यू नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यू कैन नॉट यूज द वीक पॉइंट्स टू क्रिटिसाइज द सच अ बिग इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का है, तो वो पॉजिटिव ही आप लिखोगे उसके कंक्लूजन में, नेगेटिव नहीं लिखोगे। ओके, सो दिस वाज द
थर्ड क्वेश्चन. सो राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि 60 वर्ड के क्वेश्चन में आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है, बेसिक चीजें मेंशन करनी है, बस ज्यादा नहीं सोचना है उसके बारे में. लेकिन जब आप 120 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखते हो तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन तीनों के ऊपर ध्यान देना है. और आप ये वर्ड वहां पे लिखोगे नहीं. ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आप लिख रहे हो कि दिस इज इंट्रोडक्शन. नो, यू जस्ट सिंपली राइट द सेंटेंस. ही विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इंट्रोडक्शन. बॉडी पार्ट लिखोगे तो 8 से 10 पॉइंट मिनिमम लिखोगे. इसमें जो मर्जी हो जाए, इससे कम पॉइंट्स नहीं चलेंगे. इससे कम पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं पूरे मिलेंगे. ठीक है. जब कंक्लूजन लिखोगे तो डोंट यूज द वर्ड कंक्लूजन, जस्ट सिंपली राइट डाउन द लास्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव वे या फिर फ्यूचरिस्टिक वे में. ठीक है. या तो आप फ्यूचरिस्टिक वे में उसको ये सुजेशन के तौर के ऊपर, वे फॉरवर्ड के तौर के ऊपर कंक्लूजन लिख सकते हो कि दिस कैन बी डन टू मेक समथिंग बेटर. ठीक है. तो या तो आप वे फॉरवर्ड के तौर के ऊपर लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्सिडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हो दैट कंक्लूजन में सब्सिडीज के प्रॉब्लम में दैट द व्यूज ऑफ सर्टेन कमीशन शुड बी केप्ट इन माइंड एंड उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए ताकि ये सब्सिडीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. तो आप 1-2 कमीशंस के नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. आप उनको यूज कीजिए इन द कंक्लूजन पार्ट. So conclusion should be futuristic or in way forward way or always positive. ठीक है. नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखते आप. ओके. Then let's go to the last question. The last question is critically analyze the political of reservations in India. Has it really benefited the marginalized strata? तो रिजर्वेशन की पॉलिसी को यहां पे हमने एनालाइज करना है. ठीक है. तो यहां पे उसने लिखा है क्या करना है हमने, क्रिटिकली एनालाइज, पहला वर्ड. सो वी हैव टू गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना. ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया. पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया. तो अब जब हम देखेंगे तो पहले पार्ट के ऊपर पहले फोकस करते हैं. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 400 वर्ड्स. तो ये क्वेश्चन जो है इसको प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, सारे के सारे डायमेंशन से. आप कोई भी डायमेंशंस छोड़ नहीं सकते हैं, सारी डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी. तो आप रिजर्वेशन के बारे में बेसिकली लिख सकते हो, और रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स के बारे में लिखना है तो आप बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. दैट राइट नाउ आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट लिख सकते हो, जैसे कि इंदिरा सवानी केस. उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट इंदिरा सवानी केस में हमने देखा दैट देयर इज 27 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड द 50% ऑफ द मैक्सिमम रिजर्वेशन इन द कैटेगरीज कैन बी अप्लाइड. तो सी लिमिट प्लेस कर दी है रिजर्वेशन के ऊपर, ताकि एक रिजर्वेशन के बेनिफिट सबको मिलने चाहिए, बट एक लिमिट तक रिजर्वेशन होगी. यू कैन नॉट डू द रिजर्वेशन इन अनलिमिटेड वे. ओके. तो यहाँ पे ये केस है. यहाँ आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, जहां उनमें रिजर्वेशन को मेंशन किया गया है. 15(4) एंड 16(4) फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिजर्वेशन है. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एजुकेशन में भी है एंड जॉब्स में भी है, दोनों के दोनों तरीके के ऊपर. सो इक्वालिटी को ये वाले 2 आर्टिकल्स आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. नाउ आप उसने पूछा कि पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन के बारे में. ठीक है ना. पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, इसके बारे में उसने बात की है. तो उसके पहले हम अगर पॉजिटिव्स को देखेंगे तो रिजर्वेशन के बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं. आप देखोगे रिजर्वेशन आने के कारण जो सोशल कॉन्शियसनेस आई है सोसाइटी में, तो पीपल हैव बिकम मोर पॉलिटिकली एक्टिव. People have become more politically active and they have started to demand their rights right now.
शायद वो लोग जिनको कभी पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है रिजर्वेशन जैसी चीजें और उनके हमको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं रिजर्वेशन के कारण। नाउ इट हैज लेड टू द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट हैज लेड टू द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकली एक्टिव होने के कारण लोगों के। आप देखोगे आज भी तो जैसे जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका आना, पॉलिटिकल पार्टीज नई तरीके की आना, लाइक योर बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। तो बसपा क्या है, दे बेसिकली ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। तो इस तरीके की नई नई पार्टीज का शुरू होना, ठीक है। आप देखोगे समाजवादी पार्टी हो गया, दैट इज ऑल्सो फॉर द वीकर सेक्शन। तो इस तरह की पार्टीज का शुरू होना कंट्री में, पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आएगा, ये दो चीजें आएंगी साथ में, दैट पॉलिटिकली एक्टिव हो जाना लोगों का, नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज का आना कंट्री में, ठीक है। इसमें आप मंडल कमीशन का एग्जांपल दे सकते हो साथ में, मंडल कमीशन का इंप्लीमेंट करना और उसके कारण 27% रिजर्वेशन देना ओबीसी को। दिस वाज आल्सो ऑफ द पॉलिटिक्स, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये भी एग्जांपल्स हैं आपकी सारी की सारी मोटी मोटी, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में लिखोगे। अब इसके साथ आप लिखोगे दैट कि इसके पॉजिटिव्स उसने पूछे हैं, तो पॉजिटिव्स में ये भी है ना कि इट ट्राई टू प्रमोट द इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी बाय पॉलिटिकली एम्पावरिंग द वीकर सेक्शन, ठीक है ना। फिर आप ये चीज देखोगे कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुई है उनको दूर करने के लिए ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस व्हिच these people from the weaker section have to go through, उस चीजों को दूर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है, ठीक है ना। रिजर्वेशन आने के कारण सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, हर एक बंदा एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहा है। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों हम दे रहे हैं, ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या गोल्स जो है या विजन जो है उसको अचीव किया जा सके एक जस्ट सोसाइटी की, ठीक है ना। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब बराबर है, उस सोसाइटी को अचीव करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये चीज, तो आपको इसलिए रिजर्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है। आप हम पहले क्वेश्चन में देखा ना, प्रीएम्बल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दैट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो तीनों की तीनों जस्टिस को प्रमोट करने के लिए प्रीएम्बल में खुद जब मेंशन्ड है ये चीज, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और उस चीज को अचीव किया जा सके, उसके लिए रिजर्वेशन जरूरी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को देखने के लिए, ठीक है ना। अब जब सोशल जस्टिस आएगी तो इकोनॉमिक जस्टिस अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। सब जब लेवल प्लेइंग फील्ड पे फैलेंगे तो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होंगे, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होंगे तो वो लोग जो हैं वो ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, दे विल बिकम मोर एजुकेटेड, और एजुकेटेड बंदे होने के कारण वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाएंगे और पॉलिटिकल जस्टिस भी अपने आप अचीव हो जाएगी, पॉलिटिकल राइट्स जब लोगों को पता लगेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस लाइन वाइज आएंगी तीनों के तीनों, ओके। देन इससे हमें ये भी एक चीज देखी है कि एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, which in it has said that the quality of the services by the government has not gone down because of reservation। तो रिजर्वेशन के कारण अगर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं नीचे गई हैं तो वी शुड कंटिन्यू विद दैट, सो दैट अभी भी इन लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है उनको जरूरत है रिजर्वेशन की, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जरूरी हो जाता है रिजर्वेशन, ओके। इसमें क्या एग्जांपल देख सकती हो रेलवेज की, इंडियन रेलवेज को अगर आप बात करें तो इतने सारे लोग हैं जो एससीज या एसटीज या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इंडियन रेलवे की एफिशिएंसी अभी भी वैसे की वैसी है, इट इज स्टिल अचीविंग इट्स डिजायर्ड गोल्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होंगे
इसकी चीज के ऊपर, तो वो क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव्स या लिमिटेशंस। नेगेटिव्स या लिमिटेशंस। तो पहली बात यह है कि रिजर्वेशन के कारण आपके कास्ट पॉलिटिक्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं। कास्ट पॉलिटिक्स हो गई हैं, सो इट हैज लेड टू मोर क्रीक्स या क्रैक्स इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में और ज्यादा क्रैक्स आ गए, ठीक है ना। शायद आप देखोगे तो सोशली आज हम कास्ट सिस्टम को इतना नहीं देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकली कॉन्शियस होने के बाद कास्ट सिस्टम जो है उसके बेसिस के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। तो वोटिंग बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो आप अपनी कास्ट के लोग जो हैं वो एक कास्ट के अपने लीडर को ही वोट करेंगे। तो पॉलिटिकल क्रैक्स आ गए हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि ये रिजर्वेशन जो था इट वाज ओनली फॉर 10 इयर्स और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इट शोज कि गवर्नमेंट जो है वो इट इज ट्राइंग टू वो द वीकर सेक्शन। तो उनकी वो या फिर वोट कास्ट पॉलिटिक्स के बेसिस के ऊपर वोट बैंक के तौर के ऊपर देख रहा है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो प्रमोट कर रहा है। आप लगातार रिजर्वेशन को इंक्रीज करते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अपना वोट बैंक बचाना है। उसके लिए आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, यू कैन सी दैट, आप इसमें एग्जांपल अच्छी डाल सकते हो कि यूपीएससी के पिछले 2-3 टॉपर्स जो हैं दे वर फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, वहां फिर बैकवर्ड सेक्शन के, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपर्स हैं यूपीएससी के, कनिष्क कनारिया, टीना डाबी, दे वर ऑल फ्रॉम द वीकर सेक्शन एंड येट they have achieved the good performance in the education and have topped some of the one of the toughest exams in India। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ गए हैं ये। तो अब वीकर सेक्शन जो है वो इसमें आना शुरू हो गया है, तो इसको कम कर देना चाहिए। उल्टा आप क्या कर रहे हो, एक और चीज देखोगे आप, तो न्यू कास्ट जो है, नई नई कास्टें जो है वो डिमांड कर रही हैं रिजर्वेशन के लिए। वो वाली कास्ट जिनको शायद रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जाट्स, गुज्जर्स, ये सारे के सारे रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान में, हरियाणा में आंदोलन चल रहे हैं फॉर द रिजर्वेशन के लिए। तो रिजर्वेशन को कम करने की जगह रिजर्वेशन और ज्यादा प्रमोट हो रही है। गवर्नमेंट का फोकस तो अल्टीमेटली ये होना चाहिए ना कि रिजर्वेशन को कम किया जाए, लेकिन रिजर्वेशन ज्यादा प्रमोट हो रही है और नई नई कास्ट आ रही है जो कि ये रिजर्वेशन मांग रही है हम। ओके, ये हो गया। देन आप और देखोगे तो रिजर्वेशन के कारण क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन के कारण जॉब्स तो मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, लेकिन वो क्या सच में सोशली कन्वर्ट हो रही है कि नहीं? सोसाइटी इज स्टिल डिस्क्रिमिनेटिंग। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है, आप देखोगे तो रिजर्वेशन के कारण सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं ना दूर हुआ है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर टू स्टॉप दिस डिस्क्रिमिनेशन। इट इज नॉट द ओनली वे। यू हैव टू वर्क सम न्यू वेज टू स्टॉप दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन इज वन वे ओनली, रिजर्वेशन इज नॉट द ओनली वे। तो आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो गवर्नमेंट व्हेन इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज राइट नाउ, आप देखोगे तो गवर्नमेंट जब आजकल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहा है अंडर RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सो डू यू थिंक दैट राइट नाउ आल्सो रिजर्वेशन शुड बी देयर? जब गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्री में, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक सर्विसेज लाइक फ्री फूड, देन do you think that the government should also provide the reservation right now? Because they have the tool themselves, free education मिल रहा है, तो ये उनके लिए टूल है for the climbing up the social ladder। तो सोशल लैडर में ऊपर जाने का ये टूल है। अच्छा, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी
इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फिर भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है। और आप देखोगे ओवर द टाइम पीरियड रिजर्वेशन rather than being a tool of inclusion, it becomes a tool of exclusion. तो अब क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन की हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन में भी कुछ अलग अलग ग्रुप्स में, अगर एससीज या एसटीज में या फिर ओबीसीज में देखेंगे तो देयर आर ओनली फ्यू ग्रुप्स व्हिच आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम दिस रिजर्वेशन। सिर्फ कुछ कास्ट ही हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, बाकी के ग्रुप्स को तो अभी भी पता नहीं है। सो जो सबसे ज्यादा नीचे थे वो अब भी सबसे ज्यादा नीचे हैं। सो अगर दिस इज अ पूल ऑफ people who has got the reservation, so only this upper layer it has gotten the benefits of the reservation, and this group ये अभी भी exclude ही है। it still does not know कि reservation के कैसे benefits लिए जाए, it is still out of the reservation। ठीक है, बाकी आप एक आधा पॉइंट और लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि रिजर्वेशन के कारण एगिटेशंस होते हैं विच कैन कॉज सोशल अनरेस्ट। तो सोशल अनरेस्ट या सोसाइटी की पीस जो है वो डिस्टर्ब होती है फॉर द एगिटेशन, बिकॉज ऑफ एगिटेशन फॉर द रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के एगिटेशन के कारण सोशल अनरेस्ट होते हैं एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी खराब होती है। Now this was the first part of the question only. Now we have to look at the second part also. So second part is, has it really benefited the marginalized strata? क्या सच में इसका फायदा मिला है सबको? तो इसमें भी आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लिखनी पड़ेगी। You have to write a balanced approach कि बेनिफिट मिला है, ऑब्वियसली रिजर्वेशन आने से बेनिफिट मिला है, बट एक लिमिटेड बेनिफिट मिला है। जैसे हमने बताया, मैंने आप इसमें बात कर रहे थे हम कि रिजर्वेशन के कारण इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो मिल गई हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूड है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आज भी आपको एक्ट की जरूरत है, लाइक जो कि इन वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकें, लाइक योर प्रिवेंशन ऑफ अरिस्टोक्रेसीज एक्ट। The Prevention of Aristocracies Act 1989 आप देखोगे तो उसको अभी भी आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि अभी भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। योर स्टेट्स लाइक यूपी, उनमें सबसे ज्यादा केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एससीज हैव बीन रजिस्टर्ड एंड दे हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसीज इन अगेंस्ट द एससीज इन सम स्टेट्स लाइक यूपी एंड अदर। वो एक्चुअली इंक्रीज कर गए, डिक्रीज नहीं हुए। तो दिस शोज कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो चलता जा रहा है यार। नए नए तरीके की आप देखोगे इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी में, लाइक काउ विजिलेंटिज्म, ठीक है ना, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। काउ विजिलेंटिज्म के अंदर आपके बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शन जो हैं, आप इसमें सिर्फ एससी एंड एसटीज की बात ना करिए, मार्जिनलाइज सेक्शन में बाकी के सेक्शंस भी आएंगे। दे कैन बी रिलीजियस माइनॉरिटीज आल्सो, तो उनके खिलाफ भी तो चल रही है ना प्रॉब्लम। तो काउ विजिलेंटिज्म जो है वो प्रमोट हो रहा है। आप देखोगे खाप पंचायत एंड ऑनर किलिंग, दे आर स्टिल देयर। ऑनर किलिंग के केसेस अभी भी आते हैं कई जगह के ऊपर, खाप पंचायत अभी भी वर्क कर रही है। काउ विजिलेंटिज्म जो है, इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। आप देखोगे रिजर्वेशन की एक अच्छी एग्जांपल और भी डाल सकते हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी तो डिस्क्रिमिनेशन इनके खिलाफ हो रहा है, जिसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो आपका रोहित वेमुला का केस, सुसाइड ऑफ रोहित वेमुला हैदराबाद में 2016 में। तो दिस स्टूडेंट हैज परफॉर्म द सुसाइड बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इसके खिलाफ, बिकॉज ही बिलोंग टू अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन तो मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग।
एक और चीज आप इसमें लिख सकते हो कि डिस्पाइट द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन रिजर्वेशन में क्या कर रहे हो कि आपने जो टर्म्स ऑफ इंक्लूजन लिखी हैं, लाइक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जो है वो इस तरीके का क्राइटेरिया कि लगभग सारे के सारे लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, एक्सक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। आपने जिस जो अपना इनकम लेवल ऑफ 8 लाख रखा है या फिर 5 एकड़ जो आपने जमीन रखी है, या फिर आप देखोगे 2000 स्क्वायर फीट का आपने मकान की बात की है, तो ये ऐसे ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि पहुंचना मुश्किल है। आप देखोगे इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 एकड़, एवरेज लैंड होल्डिंग इज अबाउट 1 एंड लेस देन 1 एकड़ या 1 एकड़ के आसपास है। तो ज्यादातर पॉपुलेशन के पास तो 1 एकड़ जमीन ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर में फॉल ही नहीं करते हैं, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप एक्सक्लूड किसको कर रहे हो? सब तो सब इंक्लूजन में है। तो यहां फिर आपको एक और चीज करनी चाहिए कि वर्टिकली विद इन द ग्रुप देयर शुड बी वर्टिकल रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ओबीसी की बात ही कर लेते हैं, दिस इज द ग्रुप ऑफ ओबीसी जिनको हॉरिजॉन्टली 27% रिजर्वेशन मिली है, और इसमें आप एक 3 ग्रुप बना दीजिए। एक वो वाला ग्रुप होगा जिनको इसका एक छोटा हिस्सा मिलेगा, इसको थोड़ा बड़ा पाई, इसको उससे बड़ा पाई, ताकि सारे के सारे विद इन द ओबीसी ग्रुप सभी के सभी लोग जो हैं सबके सब जो है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। नॉट ओनली ए सिंगल कम्युनिटी और अ ग्रुप शुड बी यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन। तो सबके सबको बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग। सो या ऑल्दो द रिजर्वेशन हैज benefited the society and led to inclusion of many people and within the society। और आजकल क्या है कि आप देखोगे SCs, OBCs and other community they are part of the prestigious jobs, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्रेडिट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन this has not still answered stop the social discrimination occurring against them। और कहीं ना कहीं इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन का ही वजह है कि आपका पॉलिटिकली जो क्रैक्स है सोसाइटी में, या पॉलिटिकली वोट बैंक जो चल रहा है वो प्रमोट हो रहा है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो अभी भी चल रही है इसी वजह से। तो दिस कैन बी रिटन इन द लास्ट पार्ट। तो ये सारी की सारी चीजें लिख दोगे, आई थिंक मोर देन 400 वर्ड्स वुड बी डन। आपने पहले क्या लिखा, रिजर्वेशन के बारे में बताया, दैट व्हाट इज रिजर्वेशन, या फिर कुछ केसेस मेंशन कर दिए, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन करोगे इस आंसर में, ठीक है। और हर एक पार्ट को ऐसे ही करते जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मेंशन कर दो या फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस को। अगर दोनों को मेंशन करना चाहो तो दोनों को करो। देन मेन बॉडी पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो है क्रिटिकली एनालाइज का, उसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखोगे, ठीक है। एंड देन उसने लास्ट पार्ट पूछा कि क्या उसे बेनिफिट मिला या नहीं मिला, देन यू विल राइट दिस थिंग, ठीक है। तो ये चारों के चारों पार्ट्स कवर करके देन यू विल राइट अबाउट द कंक्लूजन। अब हम करेंगे बात कंक्लूजन की। तो 400 वर्ड का आंसर है, दिस 2 to 3 लाइन्स में कंक्लूजन वुड बी सफिशिएंट। अराउंड 20 वर्ड्स 25 वर्ड्स तक भी कंक्लूजन चला जाएगा तो सफिशिएंट होगा। तो इसमें भी आप यही लिखोगे दैट फ्यूचरिस्टिक वे में लिखोगे ना कि ठीक है, रिजर्वेशन चाहे उसके कारण सोशल मार्जिनलाइज सेक्शन का बढ़ावा हुआ है जो भी है, लेकिन स्टिल इट इज नीड ऑफ द आवर and reservation politics should continue, policy should continue for few more years until the ideal of social justice as mentioned in the constitution is achieved। तो ये social justice and equality within the society, social justice and equality of all within the society as mentioned in the constitution is achieved, the reservation should continue for some time। But government should also make sure that beside reservation government अलग तरीके से भी इन लोगों को उठाए। सिर्फ रिजर्वेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए ये लोग, इनको और भी कई तरीके से
उठाया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, बाय हेल्पिंग देम सेट अप न्यू बिजनेसेस, नए तरीके के स्किल्स इंपार्ट करके इन लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें इनकी हेल्प करेंगी टू राइज विद इन द सोसाइटी। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाए और जिन लोगों ने रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले लिए हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट किया जाए इसके, ताकि वो सबके सब लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, सिर्फ एक ग्रुप या कम्युनिटी ही इस चीज की मोनोपोली ना बना के बैठे। ओके, सो दिस इज हाउ द मेंस आंसर यू कैन अटेम्प्ट। तो मैंने आपको 4 आंसर्स बताए और चारों के चारों में बताया कि 60 वर्ड्स में कैसे लिखना है, 120 वर्ड्स में कैसे लिखना है एंड 400 वर्ड्स में क्या करना है। तो 400 वर्ड्स में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, इंट्रोडक्शन के साथ हल्का सा जरूर मेंशन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इन द 400 वर्ड आंसर। तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराएंगे, 1 या 2 नंबर फ्री के, ठीक है ना। उसके बाद आप मेन बॉडी पार्ट को लिखिए और मेन बॉडी पार्ट में आप प्रॉपर पॉइंट्स लिखिए और क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है, और हर एक में बैलेंस बना के रखिए। अगर आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव्स पूछे गए हैं तो ये नहीं है कि आप पॉजिटिव्स 10 लिख देंगे और नेगेटिव्स 2 लिखेंगे। डोंट डू दिस थिंग, राइट। एटलीस्ट अगर आप 7 का पॉजिटिव लिख रहे हो तो कम से कम 5 तो नेगेटिव लिखो। ज्यादा नहीं लिख पा रहे, एटलीस्ट 4-5 तो लिखोगे ना। 5 लिखने इज मैंडेटरी, ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस इट विद द सिमिलर नंबर ऑफ वर्ड्स। बट अगर नहीं आ रहे तब भी कोई बात नहीं, 4-5 भी लिख दो कि मोर देन इनफ है। लेकिन ये नहीं है कि एक तरफ 7 और 8 हो और दूसरी तरफ 2 हो, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ओके, एंड उसके बाद कंक्लूजन का पार्ट है। कंक्लूजन का पार्ट मैंने आपको बताया वे फॉरवर्ड की तरह लिखना है, पॉजिटिव लिखना है या फ्यूचरिस्टिक लिखना है। और अगर आप उसमें किसी गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट या सेकंड ARC या किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट कर सकते हो उसके अंदर भी, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो या फिर आप उसमें PM की कोई स्टेटमेंट आप देख रहे हो या किसी और प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो वो भी आपको नंबर पैच करा देगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज हाउ द GS2 पेपर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट हैज टू बी डन। हमेशा याद रखना, गवर्नेंस पार्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, ये सब कुछ लिखना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर द डे।